Hello, good morning, student. How are you all? Hope you are all fine. Now, just last class, we are complete the discussion of our accounting concept and just little start about the journal. And I am told to everyone uh, after complete the journal concept, we are going to the practical problem through book. So now today I am the prepared journal entry. Today I am just doing the journal entry from books. Don't worry, all of the questions are set up your description box. When you see the classes, when you see the video classes, then you find the question in your description box. So no problem. First of all, just read out the question, then after go to the practical sum. You are all know how to prepare the journal entry. You are know about the account, classification of account, personal, real, nominal account. Okay. Then we are doing the journal entry in format wise. We know the accounting information give us some format about different type of account. When we are prepare the different type of account, that's mean journal, ledger, so on so on. So particular basically one of the format given by the accountancy. So journal entry also prepared by the guidelines or rule according our accountancy. So first we just prepare the format. We know about the format: date, particular, LF. LF means ledger folio. We know ledger folio, and debit rupees, credit rupees. When you prepare in your copy, then you just sketch this type of format in your copy. Okay, this type of format in your copy. This is the format of journal. Provided by our accountancy. In the bookshop means which owner book prepared here in the bookshop. And last one is journal entry. We know what do you mean by journal entry. Journal word come basically French language jar. Journal means primary book. Okay, journal means primary book. Journal is the one of the record book where we record all of our business transaction day by day, chronologically with narration, all of particular given in the last video. So you all know that about. So now today I am to prepare journal entry about the book. And again I say, all of the question are pasted your description box. When you see the video class, first you see the description box in your question and put then you see the practical solve. Okay, so here first question enter the following transaction in the journal of Manohar Lal and Sons. So in the book of Manohar Lal and Sons, first here we write Manohar Lal and Sons. So Manohar Lal and Son is the owner or proprietor of this business. So we are here put the name of the Manohar Lal and Sons. Manohar Lal is the owner or shopkeeper or businessman in this concern. We prepare the journal entry on behalf of the business of Manohar Lal. On behalf of the business of Manohar Lal, if Manohar Lal business concern any name, suppose ABC Limited or any other name.
So we have put here name, business name. But in this case there is no business name. For that reason we have put here owner's name. Owner's name. First you clear it. All of the transaction recorded on the behalf of business. On the behalf of business. Last day we are discussed about business and owner is the separate legal entity. Separate legal entity. In the first sense, when we prepare any accounting activity, remember it, all of the activity done by the business through owner, that is other factor, but all of the activity, all of the transaction occurred or done by the business. If you forget this situation, if you think that all of the activity made by the owner or any other, then your accounting principle or golden rule which you follow to prepare the transaction through the journal, something travel and problem, you don't make the proper systematic way to prepare the journal entry. For that reason you remember always all of the things, all of the transaction which are occurred in the business through on behalf of business. So here you name Manohar Lal. If business concern any name here, so we put here name of the business. But in this math here any other name is not mentioned in the question. For that reason we have put the name of owner. Okay. So now first transaction. We know about the transaction. Transaction is recorded through scientific way in a primary book. This book is called the journal. This is the format of journal. This format given by our accountancy. We just follow the rule regulation about the accountancy system which are followed, which are just provided by our accountancy. We are not imagine anything our own mind. We are just learn about accounting language. I know something the accounting language. For that reason I am just learning to you how to prepare the format, how to go into the journal. Okay. Now first transaction. Manohar Lal started business with cash rupees 60,000. Date for 1st March 2019. Manohar Lal started business for rupees 60,000. Here you see the transaction. Just last class we discussed about if you see that any transaction you find out two account. Here two account is, one is Manohar Lal and another one is cash. Then you identify the two account. Manohar Lal is a personal account, cash is the real account. Then you follow the golden rule. Manohar Lal give the business some of the amount. So he is the giver. So he is the credit. And cash is the real account. Here the cash come. So cash is the debit. So cash account debit, cash debit. That means debit is first right here. Cash account debit to Manohar Lal. But last class we discussed about the Manohar Lal. Manohar Lal is the owner of the business. So in the place of Manohar Lal, we put here capital. That's mean in the name of the owner, we just write here capital. So capital mean Manohar Lal. How much amount here given? 60,000. So here 60,000 debit amount and 60,000 credit amount. So now we write here narration. Cash invested into business is the narration. That's meaning of this journal. Is the one of the journal. Okay. Now second transaction, March 2019. Purchase furniture for cash rupees 10,000. Purchase furniture for cash rupees 10,000. So we find out two account. Here furniture is the one account and cash is the one account. Furniture is the real account and cash also the real account. Furniture and cash both are the real account. Furniture and cash both are the real account. Now we find out we just follow the golden rule. If you purchase the furniture, so furniture is come. So furniture account debit,
furniture account debit, and cash will be go out, so cash is the credit. So cash and furniture both are the real account. If you follow the golden rule, cash come, so cash debit. No sir, cash is not come. If you purchase furniture, so cash is not come, cash is goes out, because you purchase furniture with paying cash, so cash is goes out from your business, so cash is credit, and furniture will debit because furniture come in your business, furniture come in your business. So journal entry is furniture account debit to cash, furniture account debit, furniture account debit, furniture account debit to cash account. What's the amount here? 10,000. Okay. So what is the narration here? Purchase furniture in cash. Purchase furniture in cash. So this is the second transaction. We put the journal entry. Now 4th March. What is the transaction? Purchase good for cash. Purchase good for cash are rupees 25,000. Goods. Last class we discussed about the goods. Goods mean the material or things which are produce our manufacturing goods or selling goods. So goods means those items which are the main commodity of your business. That's mean if you just carry on a garment business, so garment is called here goods. If you a merchant of a potato business or vegetable business, so vegetable is the goods. If you carry on the furniture business, so furniture is the goods. So goods is the basically word used for which commodity you carry on the business in main part. Understand? Last class we discussed about total about the good. If you any problem, then just see the last class what do you mean by the goods. So if you purchase goods, then instead good you use the account purchase. Listen it, mind it. When you purchase goods, when you purchase furniture, then one account is furniture. But if you purchase goods, then goods is not account, purchase is the account. It is the nominal account. Okay. And cash will be go, cash real account, so cash credit. Purchase nominal account, expenses occurred here, so purchase debit. Sir, goods and other things or item basically difference here. One of the example, when you purchase furniture, then you write here furniture. But when you purchase goods, then you write here purchase. Then you write here purchase account debit. Instead goods. So purchase account debit to cash. Purchase goods, journal entry is purchase account debit to cash. What's the amount? 25,000. Narration: purchase goods in cash. Purchase goods in cash. Sir, furniture is the real account, but purchase is not the real account. Purchase is the nominal account. Sir, why? Goods also the item or things. But you say good is not the real account, good is the nominal account, but furniture is the real account. What is the basic difference between goods and furniture or other item? Goods and other things. What is the nominal difference here? Sir, just remark it. If any item or things you have purchased, and that's effect going on the long term in your business, this is called the assets. But if you purchase any item as like goods,
This is not the going on the effect more than 1 year, 2 year, 3 year, because you purchase good for sale. If your business is pen, you carry the business on pen, so you purchase pen, this is the goods, and just you purchase the pen, next day you sell it. You never stay this pen in your business for long time. But if you purchase any asset like furniture, so you never sold it next day or succeeding day. It is need for your business. It is need for your business to carry the going on purpose. But if you purchase goods, it is a recurring nature. You purchase goods every time, because it is your business. You purchase goods today, you sell it next day, again you purchase, again you sell, again you purchase, again you sell. But you purchase furniture or any other asset, you never be sell. Whatever this lifetime is crossed, when the asset's lifetime is over, then you think that it will be sell or not. But your motto is not it sell, but goods purchase, your motto is sell. This is the difference. So recurring nature expenses, one of the here point given, recurring nature expenses is the one of the example of nominal account. I repeat again, sir. Every class I will be discuss the concept of accountancy. If you are all create the very well concept of account, then you going on the last stage. If your mind only for the purpose doing the math or practical, then you can clear the everything of our accounting activity, because accountancy is a language. You don't know, just you first time learn about the accountancy. So every concept, every language you asked me, you query me, what is this? Why this is the quoting here assets or nominal account? So basically difference goods and asset, I will say you. So goods is a recurring nature expenses. It is purchased for sale, but other things or assets is not the recurring nature expenses. It is the capital expenditure. It is the capital expenditure. Now, mind it. So many words, so many terms I will be use. Capital. Now just use capital expenditure. After process your accounting class, I will discuss all of the thing. What do you mean by capital expenditure? What is the revenue expenditure? Okay, sir, revenue expenditure. Good purchase is the revenue expenditure. Goods purchase is the revenue expenditure. All revenue expenditure treated as a nominal account. Okay, sir. Now go to the third transaction. Now you go to the third transaction. 5th March 2019. Transaction is bought goods from Kamlesh. Again you purchase goods. But that time you not paying any cash. You purchase goods one of the person. That person name is Kamlesh. You purchase good from Kamlesh. Not paying cash to Kamlesh. That means you purchase good on credit. You purchase good from credit. You purchase good for credit from Kamlesh. You purchase good for credit from Kamlesh. So here two account arise. One is purchase, good purchase. So one is purchase. So purchase is the nominal account. So purchase expenses. So it will be debit. Chalo. Now it is right here, purchase account debit. But you never paid any cash. Never paid. So two cash is not right here. So what's amount? What's account here right here? Here, right? Kamlesh. So Kamlesh is a personal account. We know receiver debit, giver credit. So Kamlesh is the giver because he gives goods to me. So Kamlesh is the credit. Purchase account debit to Kamlesh. Purchase account debit to
Kamlesh. What's the amount, sir? 15,000, sir. 15,000. So this is the credit transaction. You purchase good from Kamlesh. Purchase goods from Kamlesh. On credit, you write here on credit. That's mean credit. Okay. Okay, sir. So now discuss again this entry, this transaction. You purchase goods from Kamlesh, not paying any amount to Kamlesh. That's mean credit. That's mean credit. If you purchase goods, then purchase account debit. It is not indicate that if you purchase goods on credit, and if you think that purchase goods on credit, that means amount will be not paid in forever. No. This is your wrong sense. If you purchase goods today, that means next day or some day later you will be paid that amount. So now purchase is the expenses. So it's nominal account debit. You are not paying any cash. So for that reason we don't say here cash account. Goods delivered by, goods given by who? Kamlesh. So Kamlesh here account. So Kamlesh is the personal account. He gives the good. For that reason giver is credit, Kamlesh credit. Some student also think, sir, when Manohar Lal started business, then he stated Manohar Lal, we just put here capital. So when also you put here capital? No sir. Only for the honor. In case of honor, here you write the capital. All other person, you write the name of that person. This is difference. Here capital means honor, and any other name means the outsider. This is the difference of outsider and honor. If you put here capital, that means the honor. If you put the other name, that means the outsider. So not the business honor of Kamlesh. Okay. Now 10th March 2019. Paid cash to Kamlesh. 50,000. Okay, clear? You purchase good from Kamlesh 5th March and 10th March you paid the amount. So Kamlesh is the receiver here. So Kamlesh debit. Kamlesh is the receiver. Personal account debit. And cash goes out from your business. Cash real account goes out. So cash credit. Kamlesh account debit to cash 15,000. Paid cash to Kamlesh. Okay. Paid cash to Kamlesh. Before going to another transaction, I just erase this of the entry. But when you just prepare in your copy, you have sufficient space, so you don't need to erase any entry. You have sufficient space, you go to the next page. But in our whiteboard, we don't go to the next page here. For that reason, we erase the first some transaction here. 16 March 19. Purchase good from Sohan. Same entry. When you purchase good from Kamlesh, you make the journal entry purchase to Kamlesh. So here purchase account debit to Sohan. Purchase account debit to Sohan.
Purchase account debit to Soham. What's the amount? 6,000. What's the amount? 6,000. Narration same as purchase good from Kamlesh. Being okay sir. Being just last class we discussed about being. If you just if you are all the student of regional board like Bengal board, then you put here being. But if you are the student of CBSE board or ISC board, then don't you write the being. Or being purchase good from Sohan. Purchase good from Sohan. Purchase goods from Soham. Next. Next. 18. Purchase good from Sohan for cash. 18. Purchase good from Sohan for cash. This is the confusion transaction. Sir, if transaction say purchase good from Sohan, nothing more, then this transaction is the credit transaction. That means you purchase good from Sohan on credit because cash is not mentioned here. But if you purchase good from Sohan and paid cash, then the transaction same as purchase good for cash. Nothing difference. I repeat again. You purchase good from Gopal. Transaction nothing say about cash. You purchase good from Gopal rupees 10,000. That means you purchase goods rupees 10,000 from Gopal on credit. But if transaction say purchase good from Gopal for rupees 10,000 and paid cash, that transaction means purchase good for cash. So Gopal name is irrelevant. If you ignore Gopal, just you imagine, if you go any shopkeeper, if you go to the any shop and purchase a pen, shopkeeper, you ask shopkeeper how much cost of this pen, shopkeeper said 20 rupees. If you will give the 20 rupees to the shopkeeper, the shopkeeper write your name in his copy? No. You just take the pen, you go home, and shopkeeper take the money and drop the money in his cash box. Transaction over. But if you go any your known business concern where you know that person, you know the shopkeeper, and you asked I want a pen, shopkeeper give a pen, then you ask the shopkeeper how much cost of this pen, shopkeeper say 20 rupees, then you reply okay, I will be pay the money 2 days later. Shopkeeper know you, for that reason he say okay, no problem, you go home, 2 or 3 days later you will pay the money. In this case, shopkeeper write name his book or account, some of the person, your name, suppose your name is Ram, so shopkeeper write the book, write in his copy or accounting activity Ram account. Why? Because this is the credit transaction. So when the credit transaction arise, there the name is occurred. If you pay the money, cash transaction, nothing any name. So in this transaction, you again purchase good from Sohan but paid cash. So Sohan is irrelevant here. So journal entry is purchase account debit to cash. Purchase account debit to cash. So journal entry is purchase account debit to cash. Purchase account debit to cash account. What's the amount?
8,000. Narration: purchase goods for cash. Purchase goods for cash. Sir, in last journal entry 16, date 16, you just write here being, but any other journal entry you don't write being any what. So again I say, if you the student of a regional board like Bengal board, you just write every narration. First you write being, but in you CBSE board student or ISC board student, don't write any being. That's like, okay. This is now the last transaction of this question. Paid rent for the office. Paid rent for the office. 20 March. Paid rent for the office. So here two account. One is rent. Rent mean, you know, all of you know rent. Rent means your business carried on a rented premises. For that reason you paid rent to the landlord. So you paid the rent to the landlord in cash. So here two account arise. One is rent, another one is cash. Rent nominal account, expenses occur to debit, but cash will be real account, goes out, so it's credit. So journal entry is rent account debit to cash account. Rent account debit to cash account. What's the amount? 1,000. Paid rent in cash. Okay. When you prepare all of the transaction in your journal entry form, then it will be added. But I have some problem to find out they are added, because all of the transactions are not here. Some transaction I erased for this transaction. So here if you added, the total added will be 1,40,000. Both sides are same, 1,40,000. Okay. This is the one of the journal entry I just prepared here in your book or question. Don't worry, this question given to just description box on your video class. So first you see the description box, see the all of the question, then you prepare the journal. Okay. तो जर्नल का डिस्कशन किए, जर्नल एक आप लोग के लिए बनाए भी। सर, अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड व आईसी बोर्ड में का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग को फर्स्ट चैप्टर जर्नल नहीं मिलेगा सर। हम लोग को फर्स्ट चैप्टर मिलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ये फर्स्ट चैप्टर मिलेगा हम लोग को। सर तब ये जब फर्स्ट चैप्टर मिलेगा तब आप जर्नल क्यों सिखाएं सर? सर अगर हम लोग सीबीएसई बा आईएससी स्टूडेंट हो तो हम लोग को फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगा। अगर हम लोग किसी रीजनल बोर्ड का स्टूडेंट हो जैसे बंगाल बोर्ड, तो हम लोग को फर्स्ट चैप्टर जर्नल मिलेगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन बंगाल बोर्ड व किसी और रीजनल बोर्ड में शायद है ही नहीं। बंगाल बोर्ड में तो है ही नहीं, किसी दूसरा बोर्ड के बारे में उतना नहीं बता रहे हम, शायद नहीं है। तो सर अब क्यों बताएं? पहले तो उसको सिखाना चाहिए था। नहीं सर, अगर हम लोग जर्नल का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेते, उसके बाद अगर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखते, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने में हम लोग को बड़ी मजा आएगा सर। हम लोग बड़ी आनंद से इसको सीख पाएंगे। क्यों? हम लोग को तो थोड़ा बहुत नॉलेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड के बारे में आ गया, हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग तुरंत अब्जॉर्ब कर सकते हैं सर। तो ये पॉलिसी हम अप्लाई करते हैं। तो हम
अब थोड़ा से कन्वर्ट होते अकाउंटिंग इक्वेशन में। लेकिन ये मत सोचो जब हम जर्नल को भूल जाएंगे, हम दोनों को एक साथ पैरेलली लेके चलेंगे। क्यों? अकाउंटिंग इक्वेशन छोटा चीज़ है, अकाउंटिंग इक्वेशन छोटा चीज़ है, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जर्नल सर छोटा चीज़ नहीं है। ये हम क्लास में, लास्ट क्लास में नहीं बताए थे, आप आज बता देते। जर्नल आप जितना सीखोगे तो भी कम ही रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो जितना खुशी जर्नल सीखना सर, जितना खुशी जर्नल सीखना, इसका अंत बोल के कुछ नहीं है, किसी बुक बोल के कुछ नहीं है। कोई भी बुक से आप जर्नल बना सकते हैं, कोई भी बुक से जर्नल प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी जर्नल का कोई एंड नहीं है। होगा भी कैसे? बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोई एंड हो सकता है? कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है? हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो एंड कैसे होगा? यानी ट्रांजैक्शन का एंड नहीं होगा तो जर्नल का भी एंड नहीं होगा। जर्नल आप लोग सीखते ही जाओगे। इवन क्लास अगर ख़त्म भी हो जाता है तो भी आप लोग जर्नल को हमेशा प्रैक्टिस में रखना। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ है सर जानते। सर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बोलना चाह रहा है जानते हैं? सर बोलना चाह रहा है जो एसेट्स, एसेट मतलब तब लोग को पता है, इसलिए तो जर्नल बताए थे, इज इक्वल टू लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। इसको थोड़ा अगर मैथमेटिकली हम लोग स्टैटिस्टिकल फार्मूला में लिखते तो समेशन है, इसको समेशन बोलते हैं, इज इक्वल टू समेशन एल। एल मीन्स लायबिलिटी, है ना। अब ये एल को भी अगर आप लोग सोचते हैं जैसा हम लोग अगर एल को लायबिलिटी मतलब आप क्या बोलते हैं, एसेट्स तो आप समझा चुके हैं बहुत सारा एसेट, लेकिन लायबिलिटी के साथ थोड़ा समझाइए। लायबिलिटी मतलब बोला जाता है जैसे जैसे लायबिलिटी में हम लोग लाएंगे कैपिटल, लायबिलिटी में हम लोग लाएंगे कैपिटल, और क्या लाएंगे सर? क्रेडिटर मतलब महाजन जिससे हम लोग उधार में खरीदे हैं, और क्या लाएंगे सर? आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमसे पैसा पाएगा, आउटस्टैंडिंग, ठीक ना सर। चलिए तीनों को ही रखते। सर और कोई क्या लायबिलिटी नहीं है? नहीं सर, बहुत सारा लायबिलिटी हो सकता है। बिजनेस से जो पैसा पाएगा उसी को लायबिलिटी बोलते हैं। यानी कैपिटल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, ये सारा लायबिलिटी है। तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग क्या जाने, जितना आपका बिजनेस में एसेट होगा उतना ही आपका बिजनेस में लायबिलिटी होगा। सर ये कैसे चक्कर? हम लोग तो सर एकदम नया हूँ। हम लोग तो लायबिलिटी मतलब अभी जो आप बताए, लायबिलिटी मतलब कर्ज, लायबिलिटी मतलब उधार। तो सर जितना मेरा संपत्ति उतना है उधार, तो मेरा फायदा कहाँ है? यही तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा दिमाग में। सर पूछ नहीं पा रहे, जितना एसेट उतना लायबिलिटी, तो मेरा फायदा कहाँ? बिजनेस का प्रॉफिट क्या? सर लायबिलिटी को प्रॉफिट से कैसे ताल्लुक कर रहे हैं सर? ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। देखो कैपिटल को हम लायबिलिटी में लिख दिए, मतलब क्या जान समझे? यही से तो हम आप लोग को सिखाना चाहते। कॉन्क्रीट सीखो, अकाउंटेंसी लैंग्वेज सीखो बढ़िया से, शुरू से T20 मैच खेलो सर। ऐसे मत सोचो जे ये हार्ड चीज़ है, एकदम दिमाग से सोचो। देखो कैपिटल मतलब आप लोग जर्नल में सीख चुके, जो मालिक के लगाया गया पूंजी को कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस में कोई ऑनर पैसा देता है उसको हम कैपिटल बोले, तो ये किस तरह से लायबिलिटी हो गया? यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है जो मालिक और कारोबार दोनों अलग है। ये तो सबसे बड़ा प्रूफ है सर। यानी आप लोग जब और एक सब्जेक्ट पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज, वहाँ आप लोग देखोगे इसके बारे में बढ़िया से समझाया है जो मालिक और कारोबार दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब इसका एक पॉइंट आप लोग को बताएगा कि इसका समझ हम लोग को अकाउंटिंग एक्टिविटी से भी पता चलता है। क्या ना, मालिक का दिया हुआ पूंजी को हम लोग अकाउंटेंसी में लायबिलिटी सोचते हैं। जी हाँ सर, आप किसी कारोबार, अपना कारोबार में पैसा लगाए तो कारोबार क्या बोल रहा जानते? कारोबार क्या बोल रहा? कारोबार का मुंह नहीं है। सोच लो तनिक देर के लिए, भगवान उसको मुंह दिया बोलने के लिए।
तो आप ही का कारोबार ये कह रहा है जे मेरा मालिक हमको इतना रुपया पूंजी दिया है, यानी कैपिटल दिया है, यानी मालिक के पास मेरा इतना कर्ज है, इसीलिए तो ये कैपिटल क्रेडिट होता है ना बात सब बढ़िया से समझ में। तो इसीलिए ये मत सोचो जो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी मतलब आपका प्रॉफिट नहीं हुआ। सर प्रॉफिट भी लायबिलिटी है। प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट को भी तो मालिक को देना होगा, तो प्रॉफिट इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ लायबिलिटी। सो यहाँ समझिएगा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, यानी कारोबार में जितना एसेट होता है उतना लायबिलिटी होता है। एसेट्स में तो आप लोग जानते हैं हम छोटा छोटा 2-4 एसेट लिखते, जैसे फर्नीचर एक एसेट्स है, जैसे प्लांट मशीनरी एक एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी ये भी एसेट्स है ना। जैसे स्टॉक मतलब सामान ये भी एसेट्स है, जैसे कैश ये भी एसेट्स है, ठीक ना। जैसे डेटर, सर डेटर मतलब जैसे क्रेडिटर मतलब आप लोग को बताए, ये क्रेडिटर मतलब होता है महाजन जिससे हम उधार में खरीदे हैं, अब जिसको उधार में बेचे उसको क्रेडिटर यानी महाजन कहते। तो डेटर भी एसेट्स है और लायबिलिटी तो आप लोग देखे हैं, फिलहाल फिर से एक बार इजिकल टू देके लिख देते, कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग, तो ये सबको बोलेंगे लायबिलिटी और ये सबको बोलेंगे एसेट। सर इतना जो आप एसेट लिखे, जैसे आप लिखे फर्नीचर, आप लिखे प्लांट मशीनरी, आप लिखे स्टॉक, आप लिखे कैश, आप लिखे डेटर, बस यही सब खाली एसेट और कुछ ऐसे नहीं है? नहीं सर बहुत सारा एसेट हो सकता है, आप लोग जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो समझ जाओगे, लेकिन बेसिकली ये एसेट से आपको ये क्वेश्चन करने में सुविधा होगा। और लायबिलिटी में सर कैपिटल तो हो गए, और क्या हो सकता है ना, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है और भी वगैरह वगैरह लायबिलिटी हो सकता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे मैथ में, ठीक ना। अब हम लोग जाएंगे मैथ में। सर मैथ में जाएंगे, चलिए बताइए तो सर मैथ में जब जाएंगे तो किन चीज़ का मैथ करेंगे? जैसे सर जर्नल का मैथ कराए ना सर, उसी तरह आप लोग को एक मैथ करा रहे हैं बुक से, अकाउंटिंग क्वेश्चन का भी एक मैथ बुक से आप लोग को करा रहे हैं। और आप लोग को हम जर्नल में भी बताएं, जो एकदम चिंता मत कीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। जब भी आप लोग इस क्लास को देखोगे तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर मैथ को देखिएगा सर, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अकाउंटिंग क्वेश्चन सीखने के लिए। लेकिन याद रखिए अकाउंटिंग क्वेश्चन का छोटा फार्मूला, जितना एसेट उतना ही लायबिलिटी। ओके, तो चलिए इसको मिटाते हैं हम और आते एक मैथ करने के लिए। ऊपर में लिख दें स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। सर हम लोग के पास जर्नल का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको सीखने में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिखे एसएल नंबर मीन सीरियल नंबर, फिर यहाँ लिखे ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन मेरा होगा उसको लिखेंगे, ठीक ना। फिर इधर लिखे हम एसेट्स, इस तरह लिखे एसेट में देखेंगे क्या है, और यहाँ लिखे हम लायबिलिटी, हम लायबिलिटी में देखेंगे क्या है। सर देखेंगे मतलब सर कैसे पता चलेगा कौन एसेट कितना एसेट है, हमें बताए ना, बहुत सारा एसेट हो सकता है, बहुत सारा लायबिलिटी हो सकता है, तो देखने से पता चलेगा सर। तो फिलहाल हम इस तरह इसको डिवाइड करके यहाँ कर दिए। सर एक लायबिलिटी होगा ही जो है कैपिटल, इसको आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना सर। और एसेट को भी हम इस तरह कर लिए। सर एसेट क्या होगा कुछ बता पाएंगे? हाँ सर एक एसेट तो आप लिख ही सकते हैं, नेचुरली एसेट होता है, नेचुरली शब्द का इस्तेमाल किए कैश, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस तरह से मैथ को देखते जाएंगे सर। आशा रखते हैं आप लोग भी बढ़िया से इस मैथ को समझ पाओगे। ये मैथ के साथ अकाउंटेंसी डेबिट क्रेडिट का उतना कुछ ताल्लुक ही नहीं है, ये तो जस्ट प्रिलिमिनरी स्टेप है। जैसे बोला है सर
हम ये बताया जो आप लोग को पास जर्नल का कॉन्सेप्ट है इसीलिए, लेकिन सर आप लोग बढ़िया से इस मैथ को एब्जॉर्ब कर पाओगे, मतलब तुरंत समझ पाओगे। मनोहर लाल कारोबार शुरू किया 60,000 रुपया देके। मनोहर स्टार्टेड बिजनेस 60,000। आप लोग को बस जर्नल का कॉन्सेप्ट है इसीलिए तो सिखा के बाद इसको करा रहे हम। तो क्या देखे, कैश बिजनेस में आया और मनोहर लाल दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो रहा था ना सर, उसी कॉन्सेप्ट से चलते। तो यहाँ सीरियल नंबर में हम लोग, अच्छा यहाँ डेट भी दिया तो सीरियल नंबर की जगह में डेट लिख देते सर, सुविधा होगा। डेट दिया है 2019 मार्च 1 है। क्या स्टार्टेड बिजनेस है, ट्रांजैक्शन का नाम है स्टार्टेड बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट किया कितना रुपया देके सर 60,000। तो बिजनेस में कैश आया 60,000 और कौन दिया, कैपिटल दिया, तो कैपिटल भी 60,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही जानते हैं हम लोग। ओके सर, ठीक है सर, समझ गया आप क्या बोलना चाहें। तो चलिए 2 तारीख को चलते। 2 तारीख को क्या बोला, 2 तारीख को आप फर्नीचर खरीदे, कैश दिए। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितना रुपया देके फर्नीचर खरीदे सर, फर्नीचर खरीदे आप 10,000 रुपया देके। तो एक तो नया एसेट्स है फर्नीचर, तो यहाँ कैश प्लस फर्नीचर भी लिख दिए सर, प्लस लिख के रखे, कुछ आएगा तो लिखेंगे। तो अगर आप 10,000 रुपया देके फर्नीचर खरीदते तो आपके पास जितना कैश है 60,000 है, उससे 10,000 चला जाएगा सर, ठीक ना। लेकिन आपके पास एक 10,000 का फर्नीचर भी आ जाएगा सर। देखो मजा आ रहा है ना सर, आप लोग जानना जानते हैं ना सर। तो आपके पास 60,000 बिजनेस में था, वहाँ से 10,000 रुपया देके तो फर्नीचर खरीदे तो कैश 10,000 घट जाएगा और फर्नीचर आएगा 10,000। लेकिन कैपिटल में तो कुछ असर नहीं होगा सर, कैपिटल में कुछ असर नहीं होगा, कैपिटल में कुछ असर नहीं होगा। तो सर बैलेंस देखते, क्या बैलेंस बोल रहा, बच रहा देखें। कैश था 60,000, 10,000 चला गया तो कैश अभी है 50,000। फर्नीचर आपके पास 10,000 है, आप इधर आपके पास कैपिटल है 60,000, अब तो कुछ नहीं है सर। ठीक है सर, आगे बोलिए, समझ गए। परचेज गुड फॉर कैश, 4 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश। सर कैश देके आप गुड्स खरीदे, गुड्स मतलब तो सामान सर। तब और एक तो एसेट आ रहा सर स्टॉक मतलब सामान, स्टॉक मतलब सामान। ये भी आप खरीदे हैं कितना रुपया देके 25,000। तो सर फिर से कैश चला जाएगा। हाँ सर जी, ठीक बोल रहे आप लोग, फिर से कैश चला जाएगा। फर्नीचर में कोई असर नहीं होगा, लेकिन आपके पास सामान आएगा 25,000। यानी कैश जैसे आपके पास से 25,000 चला गया, लेकिन सामान तो आया सर, कैपिटल में कोई असर नहीं हुआ सर। ठीक है सर, समझ जा रहे आप लोग, बनाते जाइए, हम लोग तो आराम से समझ गए बात को। तो चलिए देखते फिर से बैलेंस क्या हो रहा, देखते फिर से बैलेंस। ये बैलेंस लिखे हम, कैश 50,000 से और 25,000 चला गया तो बचा हुआ कैश और 25,000 है। फर्नीचर है आपके पास 10,000, और क्या आया ना, सामान आया सर 25,000 आपके पास। इधर क्या हुआ ना, 60,000 कैपिटल है, अब तो फिलहाल कुछ नहीं है। अभी भी हमेशा जब भी आप जोड़ोगे ये 60,000 तो ये भी 60,000 ही होगा सर। 5 तारीख को बोला बॉट गुड फ्रॉम कमलेश, कमलेश से सामान खरीदे 15,000 का। बॉट गुड फ्रॉम कमलेश, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। सर ये सब तो इसीलिए जर्नल में सिखा के रखे, हम बोले ना अगर नाम दे देता, कैश नहीं बोलता तो यानी उधार में खरीदे, सामान खरीदे कमलेश से। कमलेश से उधार में अगर सामान खरीदोगे तो कमलेश पाएगा, तो कमलेश आपके लिए महाजन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो और एक लायबिलिटी आ गया सर क्रेडिटर, और एक लायबिलिटी आया क्रेडिटर। तो सामान खरीदे, पैसा तो नहीं गया, कैश से कोई मतलब नहीं है, फर्नीचर से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन सामान अगर उधार में खरीदो और कैश में खरीदो, सामान तो आपके पास आएगा सर। तो स्टॉक में और 15,000 हो गया। कैपिटल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाजन आपका 15,000 बढ़ गया, ठीक है सर। महाजन आपका 15,000 हो गया। तो चलिए आप देखते क्या हो रहा, फिर से बैलेंस कर लेते सर।
फिर से बैलेंस कर लेते तो आपके पास कैश तो 25,000 ही है, क्यों आप कैश को अभी कुछ नहीं किए थे। फर्नीचर आपके पास 10,000 है, स्टॉक आपके पास 40,000 हो गया सर, है ना। तो 25 40 हो गया, 65 10 75। और इधर भी देखो सर 75 ही है, 60,000 पूंजी है, अब 15,000 महाजन पाएगा कारोबार से। चलिए आगे चलिए सर, आगे चलिए, बढ़िया आप समझा रहे हैं। चलिए 10 तारीख को क्या बोल रहा है ना, कमलेश को आप 10,000 रुपया दिए, पेड टू कमलेश, पेड टू कमलेश, कमलेश को दिए 10,000। तो 10,000 अगर दोगे तो कैश 10,000 घट जाएगा सर, कैश 10,000 घट जाएगा सर। फर्नीचर में कोई कसर नहीं होगा, स्टॉक में भी कोई असर नहीं होगा, और सर क्या होगा, कैपिटल में कोई असर नहीं। लेकिन जो महाजन आपसे पाता था 15,000, उसको तो 10,000 दे दिए, तो महाजन तो कुछ तो घट जाएगा सर। 15,000 तो और नहीं पाएगा, 10,000 अगर दे देते तो वो तो और 5,000 पाएगा, तो महाजन से 10,000 माइनस किए। तो फिर से देखते बैलेंस कितना हो रहा, फिर से देख रहे हैं बैलेंस कितना हो रहा। बैलेंस में आपके पास कैश और बचा है 15,000, 15,000। फर्नीचर आपके पास है 10,000, 40,000 है आपके पास स्टॉक, 60,000 आपके पास है कैपिटल, और महाजन और आपसे पाएगा 5,000। जी हाँ सर, जी हाँ। 16 तारीख को परचेज किए सोहन से, परचेज किए सोहन से, 16 तारीख को अब परचेज कर रहे हैं सोहन से। परचेज गुड्स, क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से खरीद रहे। तो फिर से उधार में खरीद रहे, क्योंकि कैश को नहीं बोला, अब तो सिखाए सर, तो कैश में कुछ असर नहीं होगा, फर्नीचर में कोई असर नहीं होगा। लेकिन सामान फिर से आया, फिर से सोहन से सामान आया, कितना आया सर, कितना आया सर, देखिए कितना आया, कितना आया सर, सामान आया सर आपका 8,000 का, ठीक है। कितना का सामान आया सर, फ्रॉम सोहन आया 6,000, सॉरी सर 8,000 नहीं, 6,000 का आया सर, 6,000 का आया, ठीक है। तो सामान 6,000 आया, तो महाजन फिर से 6,000 हो गया, महाजन फिर से 6,000 हो गया। तो चलिए सर फिर से करते, फिर से करते, फिर से करते। तो बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस 15,000 कैश रहा सर, 10,000 फर्नीचर में उसी तरह रहा, और सामान हो गया सर आपका 46,000, कैपिटल तो सर आपका 60,000 ही रहा, और 11,000 आपका टोटल महाजन हो गया। हाँ सर, वो तो जान ही रहे हैं। फिर अब सोहन से खरीदे, फिर अब सोहन से खरीदे, परचेज किए, परचेज, परचेज गुड फॉर कैश, सर सोहन से खरीदे, लेकिन कैश से खरीदे। तो कैश से खरीदे तो सोहन से कोई मतलब नहीं है, जर्नल में तो हम समझाए थे। तो कैश आपका घट जाएगा 8,000 रुपया, ठीक है ना। लेकिन आपके पास 8,000 का तो सामान आएगा सर, तो यहाँ फिर से डैश दे दिए, ठीक ना। तो चलाते फिर से बैलेंस देखने के लिए, चलाते फिर से बैलेंस देखने के लिए। बैलेंस में क्या बोल रहा देखे, बैलेंस में क्या बोल रहा ना, आपके पास कैश रहा 7,000, आपके पास फर्नीचर है 10,000, आपके पास स्टॉक हो गया 54,000, आपके पास कैपिटल है 60,000, और महाजन है 11,000। देखो इधर 71,000, इधर भी 71, 54, 54 और 10,000, 64 और 7,000, ठीक ना। 71,000 लास्ट सर, लास्ट रेंट पेड किए, रेंट पेड किए 20 को आप पेड रेंट किए, पेड रेंट। सर रेंट अगर पेड करोगे तो कैश आपका चला जाएगा, कितना चला जाएगा सर, कितना चला जाएगा, 1,000 चला जाएगा, ठीक ना, 1,000 चला जाएगा सर। फर्नीचर से कोई असर नहीं, स्टॉक से भी कोई असर नहीं, लेकिन रेंट पेड करोगे तो ये तो आपका खर्चा है, मतलब लॉस है, तो यानी आपका पूंजी घट जाएगा सर। लॉस होने से आपका कैपिटल से डिडक्ट होगा, और प्रॉफिट होने से आपका कैपिटल में प्लस होगा। बात को दिया याद रखिएगा सर। कहीं भी लॉस होगा, यानी नॉमिनल अकाउंट जहाँ होगा वहाँ अगर
आपका क्रेडिट होता है मतलब लाभ होता है तो प्लस होगा, और नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता तो माइनस होगा। चलिए बैलेंस कर लेते सर, लास्ट हो गया, मैथ भी खत्म हो गया, बैलेंस कर लेते। बैलेंस में क्या देख रहे हैं सर हम लोग ना, ये कैश मेरा पास रहा 6000, फर्नीचर रहा मेरा पास 10000, स्टॉक रहा मेरा पास 54000, ठीक ना सर, और कैपिटल हो गया मेरा 59000, क्यों 1000 तो लॉस हो गया था, और महाजन रहा 11000। तो 59 और 11000 अगर जोड़ो तो 70000, सर इधर भी 70000 हुआ ना सर। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो ये मैथ सर कौन वाला कराया जानते सर, जो जर्नल एंट्री आप लोग को हम कराए थे उसी से अकाउंटिंग इक्वेशन कराए, जिसका हम लोग जस्ट जर्नल एंट्री सिखाए थे, वही जर्नल एंट्री को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में किए सेम। यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जर्नल एंट्री को आप लोग देखोगे उसी का हम अकाउंटिंग इक्वेशन कराएं, उसी का अकाउंटिंग इक्वेशन कराएं। क्यों न, दोनों चीज़ आप लोग को समझने में काफ़ी सुविधा होगा। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि जर्नल एंट्री से ही अगर जर्नल एंट्री से ही अकाउंटिंग इक्वेशन भी कर सकते हैं। यानी जर्नल एंट्री को अगर ठीक से समझ जाते तो अकाउंटिंग इक्वेशन करने में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना सर। तो चलिए और एक तो हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में चलेंगे। हम तो इसको उतना नहीं इरेज करेंगे, हम तो इसको रख देंगे, क्यों मेरे तो और इरेज करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मेट तो सर इसी तरह बनाना है, फॉर्मेट तो सर इसी तरह बनाना है, तो हम फिलहाल इसको इस तरह से रख दिए, फॉर्मेट इसी तरह का ही है। अब हम लोग एक तो नया अकाउंटिंग क्वेश्चन में चलते। तो ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चन हम कराएंगे, ये क्वेश्चन से आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, लेकिन जो जर्नल एंट्री कराए उसका जो अकाउंटिंग क्वेश्चन अभी दिखाएं वो एक ही क्वेश्चन रहेगा। यानी अकाउंटिंग क्वेश्चन और जर्नल एंट्री सेम, इसका भी दूसरा क्वेश्चन में रहेगा, ठीक ना। ओके सर। चलिए हम एकदम बढ़िया मैथ में आप लोग को चलेंगे, जिसमें आप लोग को अकाउंटिंग क्वेश्चन और ढंग से समझ आ जाए, ठीक ना सर। ओके सर। सर ये सब और लंबा लंबा करना चाहिए, हम नहीं करते, आप लोग तो जानते हैं सर। ये जो मैथ कराओगे इसमें क्या कैश फर्नीचर स्टॉक रहेगा? नहीं सर, नहीं भी रह सकता, आप लोग को समझने में भी सुविधा हो सकता। तो फिलहाल हम इसको मिटा दिए और इस क्रेडिटर को मिटा दिए। हम तो बोले सर ये दो ठो रहता ही है, तो यहाँ कैश प्लस करके रखे और कैपिटल प्लस करके रखे, है सर। तो यहाँ कोई ये नहीं है, सीरियल नंबर है, तो यहाँ डेट कॉलम को मिटा देते न, एक नंबर देते। क्या बोला न, संदीप बिजनेस शुरू किया है 1 लाख रुपया देके। सर आप तो सिखा दिया, आप तो हम ही लोग बना देंगे सर। स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किए, तो बिजनेस स्टार्ट करोगे 1 लाख रुपया देके, तो कैश 1 लाख आएगा और कैपिटल भी 1 लाख आएगा। कौन स्टार्ट किया था? संदीप। ओके, अच्छा इसके बाद सीरियल नंबर 2 क्या है ना, फर्नीचर खरीदे आप 5000 रुपया देके, तो परचेज फर्नीचर खरीदे सर, फर्नीचर खरीदे तो एक तो आएगा फर्नीचर। सर उसको नहीं मिटाने से भी चलता था ना, लेकिन सर आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम सोचते जो क्या है सर, पहले से फर्नीचर को लिख दिया था, ठीक है। तो फर्नीचर अगर खरीदे 5000 रुपया देके, तो आपका कैश 5000 चला जाएगा, लेकिन आपके पास फर्नीचर आएगा 5000, ठीक ना बच्चों। अच्छा, लेकिन कैपिटल में कोई असर नहीं होगा। तो चलाते बैलेंस करने के लिए, सर बैलेंस करने के लिए आते, बैलेंस में क्या हो रहा देखे सर, कैश 1 लाख से 5000 चला गया तो 95,000 रहा, लेकिन सर फर्नीचर एक तो नया एसेट्स आया, हाँ सर जी आया, और कैपिटल आपके पास 1 लाख ही है। इसके बाद हम लोग आते 3 में, परचेज गुड फॉर कैश, 3 परचेज गुड फॉर कैश, ठीक है ना सर। परचेज गुड फॉर कैश 20,000, तो स्टॉक आया सर, स्टॉक भी हम मिटा दिए थे। हाँ सर क्या करेंगे, मजबूरन मिटा दिए थे,
आप लोग अगर प्रॉब्लम सोचते तो सामान खरीदे कैश से, तो कैश तो चला जाएगा, फिर से 20,000 कैश जितना है वहाँ से 20,000 चला जाएगा, फर्नीचर कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टॉक तो 20,000 आएगा, सामान तो आएगा, और लायबिलिटी साइड में कुछ असर नहीं होगा, लायबिलिटी साइड में कुछ असर नहीं होगा, ठीक है ना सर। तो बैलेंस कितना हो रहा है सर बता दीजिए। हाँ सर, क्यों डांटते हैं, अभी बता देते हैं बैलेंस। बैलेंस वही है 75,000 कैश रहा, फर्नीचर रहा आपका 5,000, स्टॉक रहा आपका 20,000, और कैपिटल रहा आपका 1,00,000, ठीक है ना सर। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद फिर सामान खरीदे आप उधार में 36,000 रुपया लेके, 4 को, 4 तारीख नहीं, सीरियल नंबर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में खरीदे, उधार में खरीदोगे तो कैश कुछ नहीं होगा, फर्नीचर में तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन सामान खरीदे, उधार में खरीदो और नगद में खरीदो, आपके पास तो पैसा आया, सामान आया, तो 36,000 सामान के साथ खो गया, और सामान उधार में खरीदोगे तो क्रेडिटर, पिछला में तो बताएं, तो क्रेडिटर हो जाएगा आपके पास 36,000, ठीक ना सर। तो समझ रहे, जर्नल कर लेने के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग का ये चीज एकदम इजी तरीका हो गया था ना। तो यही तो था मेरा मकसद, जो पहले जर्नल को इन लोग को बता दे 5। अच्छा पहले बैलेंस कर लेते सर। बैलेंस कैश आपके पास 75,000 है, फर्नीचर आपके पास 5,000 है, और स्टॉक आपके पास 56,000 हो गया, 1,00,000 कैपिटल है, और क्रेडिटर है 36,000, ठीक है सर। जी हाँ सर, ठीक है। अच्छा, अब 5 में 5 को क्या है, पेड रेंट, पिछले महीने में बताया ना सर, रेंट पेड करोगे तो आपका एक्सपेंसेस पर लॉस हो रहा है ना, तो ये कैपिटल से माइनस होगा, कैश से तो माइनस हो गए 700, यानी कैश आपका 700 चला जाएगा, फर्नीचर से कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक से कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन ये लॉस बोल के कैपिटल से माइनस होगा सर। 700 है, 7,000 नहीं है, 700। तो चलिए बैलेंस कर लेते, लास्ट फिर से बैलेंस करते हम लोग, बैलेंस करते फिर से, बैलेंस करते फिर से, बैलेंस क्या आ रहा है, बैलेंस देखिए सर, बैलेंस में क्या आ रहा है, कैश आ गया 74,300, फर्नीचर आ गया 5,000, स्टॉक है 56,000, कैपिटल हो गया 99,300, एंड 36,000 है क्रेडिटर सर। लास्ट और एक है, यानी 6 को क्या है सर, 1 एक है सर, 2 3 4 5 6, थोड़ा नीचे लिखना होगा हमको, यस सर 6 में क्या है, गुड कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000 सर, इसको सुनिए ढंग से, गुड कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 20% फॉर कैश। 40,000 का सामान अब 20% लाभ में बेचे हैं सर। 40,000 का 40,000 का 20% 8,000 होता है, तो 40,000 का सामान आप 48,000 में सेल किए हैं, 40,000 का सामान आप 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट तो सर क्या निकालना है, 40,000 का 20% 8,000 होता है, ऐड कर दिए तो 48,000 में बेचे, तो 48,000 में जब बेचे तो आपके पास कैश आया ना सर 48,000, तो यहाँ लिख दे सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आपके पास 48,000 आया, तो कैश के साथ 48,000 सर जोड़ देंगे, है ना सर। फर्नीचर में तो कोई असर नहीं, लेकिन सर आप 40,000 का सामान तो बेच दिए, तो आपके पास 56,000 का सामान था, 40,000 आप बेच दिए, तो वो तो माइनस हो जाएगा 40,000। जी हाँ सर, लेकिन आपका सर प्रॉफिट हुआ ना 8,000, आपका प्रॉफिट हुआ ना सर 8,000, तो प्रॉफिट होने से हम बोले थे ना सर कैपिटल के साथ ऐड करने के लिए, लॉस होने से कैपिटल के साथ माइनस, और प्रॉफिट होने से कैपिटल के साथ प्लस, ठीक ना सर। चलिए लास्ट हो गया सर, बैलेंस देख लेते सर, बैलेंस में क्या हो रहा देख लेते, बैलेंस कैश कितना हो गया सर 300 2
1,12,300, 1,22,300, 1,22,300। सर फर्नीचर तो 5,000 ही है। स्टॉक आपके पास बचा हुआ कितना रहा सर? 16,000 है। स्टॉक आपके पास बचा हुआ 16,000। सर ठीक है, ये तो एसेट हो गया। लायबिलिटी साइड बताइए। लायबिलिटी में आपका कैपिटल कितना हो गया? आपका कैपिटल हो गया 1,07,300। आपका कैपिटल हुआ 1,07,300 और आपका क्रेडिटर है 36,000। ठीक है ना। अब अगर ये एसेट को जोड़ोगे 1,22,300 प्लस 5,000 प्लस 16,000 को अगर जोड़ोगे जितना होगा उतना ही आपका लायबिलिटी होगा। सुनिए सर, ये था आप लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, लेकिन इसके पहले जो अकाउंटिंग क्वेश्चन कराएं वो क्वेश्चन अलग से नहीं रहेगा। जो जर्नल एंट्री कराएं वही सी से हम अकाउंटिंग क्वेश्चन कराएं, यानी वो एक ही क्वेश्चन में दो जर्नल एंट्री भी है, अकाउंटिंग क्वेश्चन भी है। इसको ये क्वेश्चन यानी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो क्वेश्चन रहेगा, एक जर्नल एंड इक्वेशन का और एक अलग से इक्वेशन का। कंफ्यूज मत होइएगा सर, ये क्वेश्चन रहेगा और आगे जो मैथ कराएं जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन वो एक ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये था आप लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना सर? अगर हम लोग ऑब्जर्व कर लेते तो ये सब इजी हो जाएगा। होप आप लोग को ये क्लास भी बढ़िया लगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जर्नल एवं अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों का थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। ठीक है ना। जर्नल एवं अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। आप लोग बढ़िया से ऑब्जर्व करो। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ आप लोग जानना चाहते हैं तो इसको वो भेज सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।